Good morning, student of class 8. I am your computer teacher Sonjit sir. Hope you all are fine. Today I am going to start a new chapter number 7. Okay, chapter number 7, which is app development. Okay, so let's start. And this is the syllabus for second term examination. And I have already completed chapter number 5 and also chapter number 6. And today I am going to start the chapter number 7, which is app development. Okay, and your second term examination will be start from 15th of November. ओके, आप लोगों का जो सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन है वो 15th of November से स्टार्ट होगा. ओके, and this is the content of this chapter. In this video I am going to discuss about the introduction of app development, types of apps, uses of common apps, installing an app on your phone, and some commonly used apps. Okay, so these 5 content I am going to discuss in this video. So now move on to the main topic. So first is, an app or application is a piece of software that can run on a computer, smartphone, or any other compatible electronic device. It is designed to do a specific work. Using an app, you can do many things like can read, draw, read maps, take photographs, edit photographs, play games, view, edit videos, and do almost anything what the programmers have built an app within द टेक्निकल लिमिटेशन ऑन योर डिवाइस. जैसे कि आप लोगों को पता है ऐप क्या होता है. ऐप होता है एक सिंपल एक सॉफ्टवेयर होता है. उससे हम लोग बहुत सारा अलग अलग टाइप का बहुत सारा टास्क हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि एक कैमरा एक ऐप हो गया, उससे हम लोग फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं. वेब ब्राउज़र हो गया, उससे हम लोग इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं. कोई भी म्यूज़िक प्लेयर हो गया, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं. ओके, इस तरह से बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप्स अवेलेबल है जो कि कंप्यूटर में भी चलता है, स्मार्टफोन में फ़ोन में भी चलता है और दूसरे अदर्स जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें भी वो चलता है. ओके, the computing power and the memory of a smartphone lays as compared to a computer. Therefore, the capabilities of an app are than less than that of the same software running on the computer. Apps are designed to run on the different operating system. For example, Android apps are developed to work on the phone which have an Android operating system. iPhone apps are developed to work on iPhones which have an iOS operating system. The internet connection speed must be faster for better running the apps. An app on Android can be downloaded from Google Play Store and iPhone for ऐप स्टोर. ओके, एप्पल ऐप स्टोर. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है और जो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो मोर पावरफुल है देन ए मोबाइल फ़ोन. ओके, और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग सेम एप्लीकेशन का अलग अलग वर्जन भी होता है. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि एंड्रॉयड ऐप जो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में ही काम करता है. जैसे कि आईफोन का जो ऐप्स हो गया वो आईओएस सिस्टम के लिए काम करता है. ओके, और इसी तरह से कंप्यूटर के ऊपर जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं वो सिर्फ कंप्यूटर के लिए ही वो डिज़ाइन किया जाता है. ओके, और एंड्रॉयड ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, और एप्पल का जो एप्पल स्टोर है वहाँ से आप लोग iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो. ओके, नाउ types of apps. Okay, first is desktop app. Desktop apps are designed for desktop and laptops. Any desktop apps needs to be installed in the computer system in order to be used. Once it installed, you can see it on the desktop as an icon or a start menu. These apps runs independently on a computer system. PowerPoint and Word are the example. So desktop apps के बारे में आप लोगों को तो पता होगा. जितना भी सारा कंप्यूटर के ऊपर जो ऐप स्टोर रहता है, लाइक सिंपल जो ऐप होता है लाइक MS पेन भी हो गया, वो कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल रहता है. ओके, और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ड्राइंग कर सकते हैं. लाइक कोई भी चीज़ हो गया, फोटोशॉप हो गया, उससे हम लोग फ़ोटो एडिट कर सकते हैं. कोई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए यूज़ के लिए. ओके, और जो उसका जो जब हम लोग उसको इंस्टॉल करेंगे तो उसका जो आइकॉन होगा वो डेस्कटॉप के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज वेब ऐप्स. Web apps are browser based apps and
are stored in the remote server. Okay, so these apps are required to internet connection. A web page can be accessed on a web page and can be installed by creating bookmark on a web page. Okay, like Google Maps is an web app. जैसे कि web app क्या होता है, वो हम लोग फ़ोन में बिना इंस्टॉल किए ही हम लोग ब्राउज़र से उसको ओपन कर सकते हैं। लाइक हो गया, मान लिया हम लोग फ्लिपकार्ट या अमेज़न, कोई भी ये सब ऐप है, वो हम लोग ऐप को तो इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र में ओपन करके भी उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तब तो जब हम लोग ब्राउज़र में ओपन करेंगे तब तो हम लोगों को ऐप का ज़रूरत नहीं होगा। लाइक हो गया सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक फेसबुक हो गया, वो सब भी ऐप है। लेकिन अगर हम लोग ऐप यूज़ करना नहीं चाहते और हम लोग वेब ब्राउज़र के ज़रिए हम लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसी को हम लोग वेब ऐप बोलेंगे। नेक्स्ट इज़ मोबाइल ऐप। Mobile applications are designed to run on a smartphone or tablet. This mobile have limited memory and hence the apps are designed accordingly. मैंने पहले ही बोला कि जो कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि कंप्यूटर तो मोर पावरफुल है देन ए मोबाइल फ़ोन। ओके, और जो मोबाइल फ़ोन का जो एप्लीकेशन होता है वो अकॉर्डिंगली मोबाइल का जो पावर है उसी के ऊपर बेस करके ही वो लोग जो प्रोग्रामर्स है मोबाइल ऐप को डिज़ाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज classification of mobile apps. First is native apps. Native apps are developed keeping in mind device specification because such device has different specification. Some native apps are come pre-installed on your phone and can also install on the device by downloading from the Play Store or App Store. Some native apps can run on the device without uses of internet. These apps have certain limitation. They are expensive टू डेवलप एंड मेंटेन। ओके, जो एप्स नेटिव एप्स मीन्स क्या हो गया कि जो एप्स हम लोग कुछ डिवाइस में हम लोग यूज़ करते हैं, प्री इंस्टॉल भी आता है। ओके, प्री इंस्टॉल भी वो जो सॉफ्टवेयर है, वो जो एप्स है वो आता है, और हम लोग दूसरा सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल प्ले से और ऐप स्टोर से। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर्स है, किसी किसी सॉफ्टवेयर में हम लोग विदाउट इंटरनेट भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट दे आर एक्सपेंसिव टू डेवलप एंड मेंटेन। जो ये नेटिव सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और मेंटेन करने के लिए भी वो एक्सपेंसिव रहता है। ओके, नेक्स्ट इज हाइब्रिड ऐप। Hybrid app is a combination of both web app and native app. It can store partly on a local drive and partly on the remote server. This app can be installed on the device downloading from the Play Store or App Store. The device should be connected to the internet. जो हाइब्रिड ऐप्स होता है उसको हम लोग यूज़ करने के लिए हम लोगों का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो रहना मस्ट है। ओके, और जो हाइब्रिड ऐप होता है लाइक वेब ऐप भी हो सकता है और नेटिव ऐप भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कॉमन एप्स, सम एजुकेशनल एप्स। लर्निंग इज ए continuous process and the focus has now completely shifted to e-learning due to the availability of the smartphone and various features oriented applications. Students can learn on at their place and take their time to understand things as everything is just like a way. Educational apps provides a new learning method. They are interesting learning games available. They includes the student the healthy thoughts process and help them understanding things from the different perspective. These apps also helps parents to interact with the teachers who respond to the parents' queries regarding the development of their words. The interactive learning apps such as can be accessed anytime. ओके, सो एजुकेशनल ऐप्स आप लोग को पता होगा, जैसे कि हो गया बायजूस। हो गया बायजूस एक एजुकेशनल ऐप है। ओके, और इस ऑनलाइन एप्लीकेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने घर पे बैठ के ही जो हम लोगों को कोई भी टॉपिक हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, हम लोग आसानी से उसको समझ सकते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई लर्निंग बोलते हैं। ओके, ई लर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज सोशल नेटवर्किंग. Social networking is a play an important role in communication. People use social networking to post photos, videos, and view updates. There are several social networking application available. First is Facebook, WhatsApp, Twitter. Okay, आप लोगों को तो इन सब के बारे में पता ही होगा। Facebook has more than 2 billion
monthly active user. Okay, 2 billion monthly active user. The user needs to have an account on a Facebook, and he or she can share comments, views, updates, and perform various of the others activities. It was initially desktop based, but now Facebook is available as an app. मैंने पहले ही बोला था जो कि फेसबुक जो है उसको हम लोग वेब ब्राउज़र के ज़रिए भी ओपन कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि जो फेसबुक था वो मेनली वेब ऐप था। ओके, बाद में जाके उसके लिए ऐप डेवलप किया गया है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट्सएप। It has more than 1.2 billion active users. It was initially text-based, but now you can make audio and video calls using the WhatsApp. Next is Twitter. It is used to tweet and follow people. Initially, tweet was restricted for 140 character, but now Twitter has removed this restriction. पहले क्या होता था कि हम लोग ओनली 140 कैरेक्टर तक ही लिख सकते थे, लेकिन अभी क्या होता है वो रिस्ट्रिक्शन ट्विटर ने रिमूव कर दिया है। अभी हम लोग बहुत सारे जितना भी हम लोग का मर्जी होगा हम लोग उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट एप्स। There are hundreds of apps available in the available for entertainment. All you need to a smartphone or any compatible device with an internet connection to access these apps. Okay, these apps allows you to watch television shows, games, movies, and various other programs. You can also listen to songs using these apps. Okay, so entertainment app basically क्या होता है, लाइक हॉटस्टार हो गया, जो गाने का जो सॉन्ग्स के लिए जो मिलता है वो सब ऐप हो गया, जिससे हम लोग आसानी से एंटरटेन हो सकते हैं। ओके, जैसे लाइक मूवी ऐप हो गया, कोई भी मूवी ऐप हो गया, जैसे कि यूट्यूब हो गया, वो वीडियो स्ट्रीम होता है। यूट्यूब म्यूजिक हो गया, हम लोग उसमें आसानी से गेम कोई भी सॉन्ग सुन सकते हैं। ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटरटेनमेंट एप्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज बैंकिंग ऐप। Nowadays all banks have their own apps. Banking apps can be used to perform various activities like transaction, checking account balance, raising request for using checkbook and open FDs. अभी क्या है, जो बैंक होता है हो गया है, जितना भी सारा बैंक है उनके पास खुद का अपना अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। ओके, पहले ज़माने में इतना जो डिजिटली ट्रांजेक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो डिजिटली ट्रांजेक्शन है उसका जो हम लोग देख रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, हर कोई अपना डिजिटली खुद का अकाउंट भी चेक कर सकता है, अकाउंट बैलेंस चेक कर सकता है, कोई भी अगर क्वेरीज हो उसको सॉल्व कर सकता है, चेक बुक ले सकते हैं, कुछ भी कर सकता है। ओके, बाय दिस banking apps. Okay, next is e-commerce. E-commerce may be defined as business activities for buying or selling products, service, and any information through electronic means, which mainly includes the uses of internet. E-commerce sites में like हो गया फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, स्नैपडील हो गया, these are the all e-commerce sites. Okay, e-commerce sites, वहाँ पे हम लोग कुछ भी आसानी से बाई कर सकते हैं, और हम लोग अगर चाहें तो उसमें सेल भी कर सकते हैं खुद का प्रोडक्ट। ओके, now installing an app on your phone. Okay, an app on Android phone can be downloaded from Google Play Store and install them. You have to follow these steps. आप लोगों को यहाँ पे ऐप कैसे इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में, वो यहाँ पे प्रोसेस दिखाया गया है। मुझे पता है कि आप लोगों को सबको आता होगा, तब भी मैं बोल दे रहा हूँ। टैप द प्ले स्टोर आइकॉन ऑन द स्क्रीन ऑफ योर स्मार्टफोन। ओके, पहले तो आप लोगों को क्या करना होगा कि जो प्ले स्टोर है, यहाँ पे प्ले स्टोर का जो साइन है यहाँ पे उसको आप लोगों को क्लिक करना होगा। ओके, इन द सर्च बॉक्स बार टाइप द ऐप यू आर लुकिंग फॉर। इफ़ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द ऐप, द एंटर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऐप एंड यू आर लुकिंग फॉर। आप लोगों को अगर नेम नहीं आता, नेम आप लोगों को पता नहीं है, तो आप लोग उसका जो डिस्क्रिप्शन है, कौन से टाइप का ऐप है, वो आप लोग लिख सकते हैं। ओके, ए लिस्ट ऑफ ऐप विल बी डिस्प्लेड, नाउ सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ऐप्स। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे बहुत सारा लिस्ट ऑफ ऐप आता है, उससे आप लोग क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। वंस यू सिलेक्ट द ऐप, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट ऐप लाइक रिव्यू, कमेंट एंड फीचर्स विल बी डिस्प्लेड। क्लिक ऑन द इंस्टॉल बटन। ओके, आफ्टर क्लिकिंग ऑन द इंस्टॉल बटन, द ऐप विल बी installed on your phone. The app will request for permission to access information for your phone. Okay, आप लोग जब भी कोई भी ऐप को इंस्टॉल करोगे तो वो ऐप क्या होता है, कोई भी ऐप हो गया हो, हम लोगों का जो फ़ोन का जो परमिशन होता है, लाइक स्टोरेज हो गया, लोकेशन हो गया, ये सब एक्सेस हम लोगों से मांगता है। ओके, उसके बाद जब आप लोग उसको एक्सेस दे दोगे, उसके बाद दी ऐप विल बी डाउनलोडेड ऑन योर फोन। नेक्स्ट इज
Some commonly used app: Google Wallet. Google Wallet is a mobile payment system that acts as a virtual wallet, allowing users to make payments and transfer money straight from their phones. This service is free for the user and can store credit, debit, gift, and loyalty card information. It is available to anyone with a new Android or Apple smartphone. Google Wallet gives user another fast way to make payments, e-commerce stores and accept it. Okay, so Google Wallet क्या होता है? One type of डिजिटल वॉलेट होता है, लाइक हो गया पेटीएम, हो गया अमेजोन पे, हो गया। ओके, ये सब क्या है? डिजिटल वॉलेट है। हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोगों का जो मनी है वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और आसानी से कहीं पे भी हम लोग उसके ज़रिए हम लोग पे भी कर सकते हैं। ओके, next is Google Now. Google Now is a feature of Google search offering predictive cars with information and daily updates in Google Apps and Android and iOS. Google Now productively delivers information the user predict information they have need. Google Now display cards with information pulled from the user Gmail account such as flight information, package tracking information, hotel reservation and restaurant reservation. It uses a natural language user interface. It recognizes repeated action that user performs on the device. Okay, and to display more relevant information to their user in form of cards. Okay, ये Google Now क्या होता है? जैसे कि हम लोग मान लिया कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो एंड्रॉयड सिस्टम में क्या होता है कि गूगल जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो गूगल का ही दिया गया है। हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो एक्टिविटी फ़ोन के अंदर कर रहे हैं, हम लोगों को वो उसी टाइप का सजेशन गूगल से हम लोगों को मिलता है। मान लिया हम लोग कोई भी एक रेस्टोरेंट के बारे में ढूंढ रहे हैं, वो क्या करेगा कि गूगल क्या करेगा कि उसी टाइप का सजेशन कार्ड की तरह हम लोगों के सामने एडवर्टाइज करेगा। ओके, नेक्स्ट इज गूगल मैप. गूगल मैप इज very important. Google Map is an app is an developed by Google. It offers satellite image, street maps, 360-degree panoramic view of street, real-time traffic condition, and route planning of traveling by foot, car, bicycle, and public transport. Google Maps satellite view is top-down or bicycle eye view. Most of the high-resolution imagery of a city aerial photography taken from the artificial एयरक्राफ्ट while most other imagery from the satellite. तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है गूगल मैप. ओके, हम लोग कहीं पे भी अगर कहीं पे भी जाना चाहते हैं, कहीं पे भी अगर हम लोग को जो एड्रेस है हम लोग पहले कभी नहीं गए, तो हम लोग किसका हेल्प लेते हैं? गूगल मैप्स का हम लोग हेल्प लेते हैं. ओके, गूगल मैप्स को हम लोग यूज़ करके क्या करते हैं कि जो डेस्टिनेशन है हम लोग वहाँ पे रीच करने के लिए हम लोग गूगल मैप यूज़ करते हैं. ओके, और ये गूगल मैप में क्या होता है कि जो सैटेलाइट इमेजरी है, सैटेलाइट इमेजरी में मतलब जो सैटेलाइट से इमेज लिया जाता है वो उससे बेस्ड है. और गूगल मैप्स में हम लोग आसानी से कौन से रूट में ट्रैफिक है, कौन से रूट में ट्रैफिक नहीं है, बहुत कुछ चीज़ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है रियल टाइम ट्रैफिक कंडीशन भी हम लोग देख सकते हैं. रूट प्लानिंग फॉर ट्रैवलिंग, कौन से रूट से जाने से शॉर्टकट होगा, कौन से रूट से जाने पे हम लोगों को समय बचेगा, वो सब हम लोग इससे हम लोग देख सकते हैं. ओके, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टुडेस टॉपिक. आप लोगों को क्या करना होगा कि अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा. ओके, क्योंकि मेनली हम लोगों का जो एग्ज़ाम होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड होता है, एमसीक्यू होता है, इसीलिए आप लोगों को बुक अच्छे से पढ़ना होगा. ओके, सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ने से नहीं होगा, बुक को अच्छी तरह से पढ़ना होगा. बुक के अंदर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है. ओके, सो आप लोग अच्छी तरह से टॉपिक को पढ़िए. ओके, सो टुडे आई एम एंडिंग माय डिस्कशन हियर. In my next video I will continue the chapter. Okay, so till then take care, goodbye and thank you.